मोदी जी की जुबान से आज तक इस विषय पर एक शब्द नहीं निकला। संसद में चर्चा नहीं करने दे रहे हैं, चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। आखिर कब तक रोकिएगा? आप संसद में नहीं बोलने देंगे ना, मत बोलने दीजिए। जनता से बीच में जाने से रोकेंगे, वहां भी हम पर केस लगाएंगे, वहां पर भी हम पर झूठे प्रश्न बनाइए। ये सिर्फ राहुल गांधी का की लोकसभा सदस्यता रद्द नहीं हुई है, लोकतंत्र मृत घोषित हुआ आज। ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। 24 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपने संतुलन खो दिया है। Rahul Gandhi has been targeted ever since he has made his speech against the Prime Minister Modi, exposing his links with Mr. Gautam Adani. This is nothing but an outcome of that. It is a sheer case of retributive politics, because Rahul Gandhi ji has been gaining popularity, especially in the wake of Bharat Joro Yatra, which was not digested by Modi government. It's a conspiracy hatched by Narendra Modi and Gautam Adani to stop Mr. Rahul Gandhi to again speak in parliament. See, the country is witnessing the politics of vendetta being spearheaded by the Modi government against Rahul Gandhi. And today he has been disqualified. It is a sheer case of retributive politics, because Rahul Gandhi ji has been gaining popularity, especially in the wake of Bharat Joro Yatra, which was not digested by Modi government. Modi government and BJP party, they are under the impression that Rahul Gandhi has to be throttled, has to be muzzled, because if Rahul Gandhi is allowed to speak inside the parliament, then the danger will come for them. They will be dislodged from the government. So this is a very cruel demonstration of a autocrat government. See, I would warn the people of India that democracy cannot survive under this present dispensation. The reason being that to continue that democracy, you need Democrats. But in India, those who are running the government and the party, they do not believe in the principle of democracy. Today's decision is the final nail in Indian democracy, hammered by the BJP RSS under Prime Minister Modi. Rahul Gandhi has been targeted ever since he has made his speech against the Prime Minister Modi, exposing his links with Mr. Gautam Adani. This is nothing but an outcome of that. But if the BJP think that this will make Rahul Gandhi weaker, they are wrong. Rahul Gandhi will only emerge stronger. He is a leader who walked from Kanyakumari to Kashmir, unifying India, rallying India behind the Indian flag, and therefore I am confident that Rahul Gandhi will come out only stronger from this, and the Congress party is ready to take the battle to every street, to every nook and corner, because we will not allow democracy to be ended the way the Prime Minister Modi is intending to do. We will fight and we will overcome. जैसे कि उम्मीद थी नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से और संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी से कि वे राहुल गांधी जी को संसद में अपनी बात कहने का मौका नहीं देंगे। संसद नहीं चलने दी। उन्होंने जितनी बातें हिंडनबर्ग रिपोर्ट और मोदी अडानी जी के संबंधों के बारे में कही थी, पूरे संसद की कार्रवाई से उन्हें हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? किस बात का डर है? मोदी जी क्यों डरते हैं? मोदी जी की जुबान से आज तक इस विषय पर एक शब्द नहीं निकला। संसद में चर्चा नहीं करने दे रहे हैं, चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। आखिर कब तक रोकिएगा? आप संसद में नहीं बोलने देंगे ना, मत बोलने दीजिए। जनता से बीच में जाने से रोकेंगे, वहां भी हम पर केस लगाएंगे, वहां पर भी हम पर झूठे प्रश्न बनाइए। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता घर घर जाएगा और अपनी बात दृढ़ता से जनता तक पहुंचाएंगे।
It's a shocking decision by the Speaker, and it has the influence of the Prime Minister Narendra Modi. It is all well known that on the day of February 11th, when our Rahul ji spoke again in the Parliament about Adani's scam, that day itself the company government has decided to stop him from entering into Parliament. It's a conspiracy hatched by Narendra Modi and Gautam Adani to stop Mr. Rahul Gandhi to again speak in Parliament. This whole session, 8 days, Mr. Rahul Gandhi ji has been requesting the Speaker to speak, but he was not given, and this shows the arrogance of Mr. Narendra Modi to stop Rahul Gandhi ji from saying the truth. We had fought the Britishers also, we will fight the RSS and Modi this time also, and Rahul ji as the leader who has been liked by millions of workers and people will come back to the Parliament with more strength, and we are all with Rahul ji. आज जिस तरह की कन्विक्शन राहुल गांधी जी की हुई है, आज उनको पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। अगर राहुल गांधी जी के साथ ये हो सकता है तो देश के आवाम जो नॉर्मल आदमी है, क्या वो इस सत्ता के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं? क्या वो भाजपा के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं? क्या वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल सकते हैं? अगर आज विपक्ष के एक लीडर को इस तरह से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है सदन से, जिसका कोई औचित्य नहीं बनता है, तो ये एक लोकतंत्र में बहुत बड़ा धब्बा है, और ये आने वाली कल की जो पक्ष और विपक्ष की परंपरा है उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होगा। ये आज सत्ताधारियों को भी 20 बारी सोचना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं सोचा। हम डरने वालों में से नहीं है, राहुल गांधी जी डरने वालों में से नहीं है। हम लगातार जेपीसी की मांग और अडानी घोटाले की जांच की मांग करते रहेंगे, और अब इस मुद्दे को हम देश के हर कोने तक पहुंचाने का काम करेंगे। The designed project of Narendra Modi-led BJP government has been convened to force as a disqualification of Rahul Gandhi as a parliament member. The day when Rahul Gandhi raised question on Adani against the Prime Minister, that point of time they start this type of conspiracy to silence the voice of Rahul Gandhi. The ministers of Modi government several times, when a false allegation against Rahul Gandhi inside the house, the Lok Sabha, as per the tradition and the rules, there is a custom to give the concerned member for a clarification statement. That also they never allowed. They never allowed to speak out. This is a clear case of anti-democratic dictatorship attitude of BJP Sarkar. They are now putting Rahul Gandhi as like Abhimanyu. Four corner they are cornering with conspiracy. Once they sent. साथियों, अभी अभी ये खबर मिल रही है कि केंद्र सरकार के दबाव के चलते कांग्रेस के नेता और लोकसभा से चुने हुए श्री राहुल गांधी जी को उनकी सदस्यता जो है निरस्त करके उनको 8 वर्षों के लिए चुनावों में शामिल ना होने के निर्देश दिए गए हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी से बहुत जगह हमारे कांग्रेस पार्टी से मतभेद रहते हैं। जब जब हम पे केंद्र सरकार ने हमले किए, कांग्रेस के नेताओं ने तालियां भी बजाई। जब जब उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पे हमले किए, अजय माकन साहब ने तालियां बजाई। मगर हम ये बात हमेशा कहते थे कि अगर केंद्र सरकार प्रजातंत्र के अंदर विपक्ष की आवाज को कुचलेगा तो लोगों की आवाज कौन उठाएगा? महंगाई का मुद्दा कौन उठाएगा?
बेरोजगारी की बात कौन करेगा? केंद्र सरकार से सवाल कौन करेगा? तो पहले ही विपक्ष को बहुत जगह, बहुत बार संसद के अंदर दबाया जाता है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। और अब छोटे छोटे मामलों के अंदर दर्जन भर राज्यों के अंदर मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। मुकदमे दर्ज करा के फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर बड़े बड़े विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ फैसले आ रहे हैं। ऐसे तो फिर प्रधानमंत्री जी सिर्फ खुद ही चुनाव लड़ ले। भारतीय जनता पार्टी ये तय कर ले कि अब तो भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव लड़ेगी, कोई विपक्ष होगा ही नहीं, वही चुनाव लड़े, वही चुनाव जीते। ऐसा तो डिक्टेटरशिप में सुना जाता था। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने एक साधारण सा पोस्टर लगवाया, मोदी हटाओ देश बचाओ। इसमें ऐसा क्या बड़ी बात हो गई? हर राज्य के अंदर जब चुनाव होते हैं उसके मुख्यमंत्री को हटाने की बात होती है। वर्षों से जब केंद्र सरकार में चुनाव होते हैं, कभी वीपी सिंह को हटाने की बात हुई, कभी चंद्रशेखर को हटाने की बात हुई, कभी वाजपेयी जी को हटाने की बात हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। यह लोकतंत्र और संविधान दोनों के साथ मजाक में मानो तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूरे विपक्ष को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है इस देश के अंदर में। 24 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी संतुलन खो दिया है। कानून के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है इस देश के अंदर में। सभी समान विचारधारा वाले दलों को अब एक मंच पे आकर के लड़ाई लड़नी होगी, सड़क पर उतरनी होगी लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए। इस देश में कभी ऐसे हालात नहीं बनी है कि अब कोई खिलाफ में बोले तो उसकी सदस्यता समाप्त करा दो, उसके खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल कराओ। यह दुखद है। आवाम इन सभी चीजों को देख रही है। सब लामबंद होइए और 24 के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने की जरूरत है। सारी कार्रवाई हुई है। अरे तो बगैर सहमति के कैसे हो रहा है? इतना बड़ा फैसला जो विपक्ष की पार्टी है, विपक्ष की पार्टी के माननीय सांसद है राहुल गांधी जी, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। ये तो घबराहट में लिया गया ये निर्णय है। नहीं तो आप स्वाभाविक है, किसी भी व्यक्ति को ऊपरी अदालत में जाने का अधिकार है, उस फैसले को चुनौती देने का अधिकार है। तो देश के अंदर में क्या आपका लोकतंत्र चलेगा, आपका लाठी तंत्र चलेगा, या देश के अंदर लोकतंत्र चलेगा? माननीय न्यायपालिका के फैसले के आलोक में नैसर्गिक न्याय का यह नतीजा होता है कि किसी भी व्यक्ति को अपना पक्ष ऊपर के न्यायालय में जाने का अधिकार है, अपना पक्ष रखने का अधिकार है। लेकिन देश के अंदर ये कौन सी हुकूमत है कि लोकसभा सचिवालय ने आनन फानन में वैसे व्यक्ति, जिस व्यक्ति का परिवार देश की आज़ादी की लड़ाई से लेकर देश के जमहूरियत की रक्षा के लिए, देश में संसदीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जिसका बड़ा योगदान रहा हो, तो राजनीति में ईर्ष्या द्वेष के तहत बगैर समय दिए, बगैर कोई प्रतीक्षा किए लोकसभा सचिवालय ने जो पत्र निर्गत करके सदस्यता खत्म करने का फैसला लिया है, ये बिल्कुल ही दुखद है, पीड़ाजनक है और नैसर्गिक न्याय के नतीजा के खिलाफ है और साथ ही साथ ये विद्वेष की राजनीति का प्रकटीकरण है। देखिए, अगर गांधी साहब 2024 का चुनाव लड़ना चाहेंगे तो उनको जल्दी ही अपील दाखिल करनी पड़ेगी। अपील दाखिल करने का समय है उनके पास। अपील दाखिल करने के बाद उनको स्टे ऑफ कन्विक्शन, जो उन पर जजमेंट आई है सज़ा की, उस पर स्टे लेनी पड़ेगी। ये नहीं कि सिर्फ बेल मिले, पर कन्विक्शन पे स्टे मांगनी पड़ेगी और अगर उनको मिल जाती है तो फिर वो चुनाव लड़ सकेंगे। लेकिन इस सदस्यता का क्या होगा? जो अगर कन्विक्शन पर स्टे हो जाता है तो क्या सदस्यता बहाल हो सकती है? देखिए, अब यही इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि लिली थॉमस की एक जजमेंट थी और उसके बाद 2018 में लोक प्रहारी आई, लोक प्रहारी वाली जजमेंट, जिसमें लिखा गया कि अगर आपको स्टे ऑफ कन्विक्शन मिल जाता है तो आपके विरुद्ध जो डिसीजन लिया गया सदस्यता खत्म करने के लिए, उस पर रोक लग सकती है। तो ये एक एरिया है जिसमें लोक प्रहारी में एक नई ओपनिंग सी उनको मिल गई है कि वो जजमेंट फिर इफेक्ट पे, वो जो सज़ा अगर स्टे हो गई तो फिर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन इफेक्ट नहीं लेगी। तो ये जो चीज़ है
इस चीज़ का फ़ायदा वो उठाना चाहेंगे, लेकिन एक बार ये नोटिफिकेशन हो गई, इनको फिर मेरे हिसाब से जाना पड़ेगा तो स्पीकर के पास कहने के लिए कि देखिए साहब अब मेरी स्टे हो गई, ये वापस लिया जाए। लेकिन अगर तब तक इलेक्शन अनाउंस हो जाता तो बात अलग है, पर वो जा सकते हैं, और अगर वहाँ नहीं तो फिर वो कोर्ट जा सकते हैं कि जो मेरी नोटिफिकेशन आई है उस पर रोक लगाई जाए। इसके लिए कोई टाइम फ्रेम है क्या कि कब तक जा सकते हैं, या क्या कुछ 30 दिन 90 दिन कुछ ऐसा? देखिए ऐसा है, अपील अगेंस्ट एक्विटल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट से हो तो उसमें 30 दिन का समय मिलता है, उनके पास 30 दिन का समय है सेशन कोर्ट जाने के लिए। सर कितने दिन के लिए अगर मान लीजिए सदस्यता चली गई तो 2 साल की सजा है, उसके बाद कितने दिन तक नहीं लड़ सकते? अगर उनकी सजा, कानून में ये लिखा है कि अगर 2 साल की सजा है तो जब वो सजा पूरी होती है, अगर स्टे ऑफ कन्विक्शन नहीं मिलता तो उसके बाद 6 साल और ये डिस्क्वालिफिकेशन चलती है। लेकिन अभी ना सजा शुरू हुई है, बेलेबल ऑफेंस है, बेल उनका हक है, तो इसलिए वो अप्लाई नहीं करेगी। दूसरी चीज़, अभी अपील है, अपील के बाद हाई कोर्ट में रिवीजन है, रिवीजन के बाद सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी है, तो अभी इनके पास कई स्टेप्स हैं। मतलब ये सदस्यता खत्म होने के बाद लोकसभा सचिवालय से ये चाहें तो स्टे लेने के बाद फिर ये लोकसभा अध्यक्ष से अपना वापस ले सकते हैं, और ये 2024 का इलेक्शन लड़ सकेंगे अगर इनको स्टे ऑफ कन्विक्शन मिल गया तो। ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं समझता हूं संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा काला धब्बा कुछ है। जिस तीव्रता से ये निर्णय लिया गया, जिसके पीछे आधारहीन तथ्य और तर्क रहे। कल ही तेजस्वी जी ने, डिप्टी सीएम हमारे दल के, उन्होंने कहा था कि विपक्ष के दलों को अब ये सोच लेना है कि लड़ाई का तरीका क्या होना चाहिए। और आज देखिए, जो राहुल जी ने कैम्ब्रिज में कहा डेमोक्रेसी के पर संकट के बाद, आपने तस्दीक कर दी। आपके मनसा वाचा करना में डेमोक्रेसी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और मैं समझता हूं कि सभी दलों को अब यह तय करना होगा, नागरिक समाज के साथ मिल करके, लोगों के साथ मिल करके, कि इस तानाशाही मनोवृत्ति को जमींदोज करना होगा। अन्यथा हिंदुस्तान का जो 75वें वर्ष आजादी में जो नुकसान हो रहा है ना, उसकी भरपाई कतई संभव नहीं होगी। ये सिर्फ राहुल गांधी का की लोकसभा सदस्यता रद्द नहीं हुई है, लोकतंत्र मृत घोषित हुआ आज। ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, अभी तो हम हाउस में थे और अभी पता चला है, और क्या मामला है, क्या शायद बोल रहे हैं कि केस का मामला और न्यायालय का मामला है, तो हम न्यायालय पे हम पूरा भरोसा रखते हैं कि ये साजिश के तहत इनको फंसाया गया है। वो तो आए दिन देख रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरीके से दुश्मन बन के हम लोगों के पीछे, हमारे परिवार के पीछे, तमाम लोगों के पीछे, जितने भी समाजवादी लीडर हैं उनके पीछे ये पड़ी हुई है। लेकिन अभी तो मामला हम देखेंगे क्या है। और ये लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियों पर कार्रवाई हो रही है लगातार, तो कैसे देखेंगे? अभी मान रहे, अभी देख रहे हैं क्या मामला है। लगता है विपक्ष को कमजोर करने की एक साजिश हो रही है। उनके कमजोर करने से विपक्ष जो है, और जो अभी जिस तरीके से हम हाउस में बैठे हुए थे और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपना दुखड़ा रो रहा था कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, जब वो अभी हैं तो वो कौन सा काम कर रहे हैं? तो पूरी बिहार की जनता और पूरे देश की जनता पूरे तरीके से ये देख रही है कि किस तरीके से इनका व्यवहार है, सब लोग देख रहे हैं। और राहुल गांधी को सर आप बहुत अच्छा जानते हैं, कैसे मतलब देखेंगे? क्योंकि राहुल गांधी पर जो नहीं, देखिए, कार्रवाई इससे अछूता नहीं है। कई एक लोगों के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी के ही पूरे इशारों पे सब चीज़ हो रहा है। हम इतना ही कहना चाहेंगे।